We're delighted to welcome you to the 14th Jaipur Literature Festival protected by Dettol. It's our pleasure to present Rahim, a Bhakti poet at the Mughal court, Harish Trivedi and Yatindra Mishra in conversation with Rekha Sethi. This session is presented in partnership with Amar Ujala. Rahim is known even to school children for his delightfully witty and wise couplets. But he also wrote bhakti poetry and classical poetry of the Shringar or erotic kind. As one of the 9 gems at the court of Emperor Akbar, he witnessed and reflected poignantly on reversals of fortune, while he also described with feeling the common life of the soldiers he commanded. Harish Trivedi's edited volume, Abdur Rahim Khane Khanan, Kavya, Saundarya or Sarthakta, opens a new window to the iconic poet and the milieu in which he functioned. Gulzar, Namwar Singh, Anamika and Sudhish Pachauri are among the contributors to this volume. In conversation with Yatindra Mishra, poet and cultural historian, and Rekha Sethi, academic and writer, Harish Trivedi will discuss Rahim as a major poet of his times who continues to be relevant in our times. Harish Trivedi has taught English at the University of Delhi and modern Indian literature at the University of Chicago. He has published in the areas of comparative literature, translation studies and post-colonialism, and is a contributing editor of a project based in Stockholm for writing a history of world literature. Yatindra Mishra is a celebrated Hindi poet, music and cinema scholar. His latest book, Akhtari, Soz or Saas Ka Afsana, is based on the lifetimes and music of Akhtari Bai Faizabadi, aka Begum Akhtar. He is currently working on a book on eminent lyricist, poet and filmmaker Gulzar Sahab. Rekha Sethi is an associate professor and the coordinator of the Translation and Translation Studies Center at Indraprasth College for Women, University of Delhi. Please do remember to comment by typing it in the comment section. Ladies and gentlemen, Rahim, a Bhakti poet at the Mughal court, Harish Trivedi and Yatindra Mishra in conversation with Rekha Sethi. Thank you so much, Sharupa. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी साथियों का जो हमें सुन रहे हैं और बहुत स्वागत हरीश त्रिवेदी जी का, यतीन्द्र मिश्र जी का, जिनके साथ आज की बातचीत का ये सिलसिला मुझे लगता है कुछ नई चीजें हमारे सामने लाएगा और हम रहीम को एक नई नजर से जानेंगे। मुगल दरबार में भक्त कवि रहीम, तो एक छवि ये बन गई, एक छवि जो उन्होंने कहा कि हम सब उनके नीति के दोहे जानते रहे हैं, स्कूल में पढ़ते आए हैं। और जो सबसे ज्यादा मुझे बात ध्यान में आती है, इस पुस्तक का जो शीर्षक है अब्दुर रहीम खाने खाना, तो इसमें जो खाने खाना शब्द लगा हुआ है वो रहीम को पहचानने में कितनी मदद करता है और उसके क्या अभिप्राय हैं। तो हरीश जी, सबसे पहले क्या रहीम से ही शुरू करें कि अब्दुर रहीम खाने खाना हमारे जो रहीम हैं जिन्हें हम हमेशा कविताओं की दुनिया में तलाशते हैं, उससे कैसे अलग हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है रेखा जी, क्योंकि अगर शीर्षक से ही शुरू करें तो किताब भी धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। जी। खाने खाना एक उपाधि होती थी, एक पद होता था मुगल दरबार में और बहुत ही ऊंचा पद होता था। ये मुगल बादशाह होते थे, जैसे अकबर थे, शाहजादे होते थे और उनके बाद खाने खाना होता था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि नवरत्न थे उनके दरबार में, लेकिन आईने अकबरी में जो तरह तरह के वृत्तांत आए हैं उनमें एक आपको सूची मिलेगी जिनमें सभी के नाम है दरबारियों के, बड़े बड़े दरबारियों के, टुडरमल, बीरबल, फजल, फैजी, सब। और उसमें सबसे ऊपर नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये उनकी प्रतिष्ठा थी मुगल दरबार में। खाने खाना सबसे बड़ा सेनापति होता था, सबसे बड़ा दरबारी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जैसा मैंने कहा कि अगर आप शाही परिवार को छोड़ दें, खासकर शहजादों को और शहंशाह को, तो वही सबसे बड़ा होता था। रहीम के पिता बैरम खां भी इसी उपाधि से नवाजे गए थे।
रहीम को ये उपाधि मिली जब ये बड़े हुए। और उसके बाद अकबर के शासनकाल में वही खाने खाना बने रहे लगभग 50 साल। जब जहांगीर आए तो उनसे पदवी छिन गई। जहांगीर को रहीम उतने रास नहीं आए, तो जहांगीर ने इनसे छीन के महाबत खां को दी। महाबत खान ने जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, तो उन्होंने महाबत खां से छीन के पदवी फिर रहीम को दी और कहा कि आप ही महाबत खां से हमारा पीछा छुड़ाइए, आप ही इसको पार लगाइए। तो ये तो उनके राजसी दरबार का ऊपर नीचे का चढ़ाव उतार था। हम हिंदी वालों को उससे अधिक मतलब है नहीं, अब तक नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हो, क्योंकि जीवन का बड़ा प्रबल पक्ष था। आपको एक पुस्तक दिखाना चाहता हूँ, दिख रही है जी? हाँ, अब्दुल रहीम खाना पर अंग्रेजी में कॉफी टेबल पुस्तक और बड़ी स्कॉलरली पुस्तक आई है, जिसकी टाइटल है सेलिब्रेटिंग अब्दुल रहीम खाना, स्टेट्समैन, कोर्टियर, सोल्जर, पोएट, लिंग्विस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, पेट्रन। उनकी 7 तरह की उपाधियां हैं और उनमें कवि का रूप चौथे नंबर पर है। मैं क्या कह रहा हूं कि हिंदी की जो पुस्तक है ये अब्दुल रहीम खाना, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज विस्तार से, इसमें उनका रूप खाना का नाम तो आ रहा है, उपाधि तो आ रही है, लेकिन इनका कवि रूप प्रमुख है। हिंदी वालों के लिए फारसी वालों की बात दूसरी है, इतिहासकारों की बात दूसरी है। उनके लिए खाना का महत्व उतना ही हो सकता है जितना कवि का। हम हमारे हिंदी साहित्य में, जैसा मैंने कहा कि स्कूल के बच्चों से लेकर और बड़े से बड़े वृद्ध तक उनका कवि का रूप सामने आता है। और उन्होंने कविता और कवि का रूप कैसे निभाया इतने व्यस्त जीवन में। लड़ाइयां लड़ी, अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक, कहां नहीं भेजे गए। उसके अलावा दिल्ली में रहे तो दिल्ली और आगरा में तो दरबार में रहे, नित्य प्रति उसका काम अलग था उनका। उसमें उन्होंने कविता के लिए भी समय निकाला, इतनी मार्मिक कविता लिखी। और उनका जो इतना बड़ा जीवन था उतार चढ़ाव वाला, जो किसी भी हिंदी कवि ने नहीं जिया। इतने ऊंचे ओहदे पर कोई भी हिंदी कवि कभी नहीं रहा। उस ओहदे के अनुभव, उस राजसी अनुभव, सेनापति के अनुभव को उन्होंने कविता में जिस तरह ढाला, वो हिंदी साहित्य में अनन्य है। तो खाना उनके लिए रहे होंगे, हमारे लिए वो रहीम है। जी जी, बढ़िया बात आपने कही। एक यतीन्द्र जी ने स्वयं इस किताब पर समीक्षा लिखी है और आपने किताब दिखा भी दी। जो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी इस किताब पर कि जैसे कहूं कि शानदार किताब है, न केवल अपनी प्रस्तुति में बल्कि अपनी विषय वस्तु के कारण। तो मैं खुद क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए बड़ा अजब था कि कैसे, और आपको मैं जानती हूँ जिस संजीदा ढंग से आप साहित्य से जुड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, जो आपका पूरा स्कॉलरशिप है। तो मुझे ये बताइए कि कबीर, सूर, तुलसी, तमाम आधुनिक युग के कवि, इन सब के बीच आपकी नजर रहीम पर कैसे गई और ये पुस्तक कैसे बनी? इसका इतिहास जो है वो 2 तरह का है। आपने बिल्कुल सही कहा, यतीन्द्र जी ने इस पुस्तक की समीक्षा की है, बहुत सुंदर समीक्षा की है। और उनसे अभी हम लोग बात करेंगे कि उसमें इस पुस्तक में उन्होंने विशेष क्या पाया, आप भी बताएंगी। लेकिन ये जो पुस्तक की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मेरा ध्यान रहीम की ओर गया, इसमें देखिए कुछ तो मेरे मन की भावना थी और कुछ ऐसा भी प्रसंग बना। जो मैंने आपको अंग्रेजी वाली पुस्तक दिखाई, वो आगा खां फाउंडेशन, यहाँ पर जिनका मुख्य काम हमारी जो धरोहर है, जिसको बिल्ट हेरिटेज कहते हैं, जो हमारे स्मारक हैं, मकबरे हैं और तरह तरह के पुरानी ऐतिहासिक भवन हैं, उनकी रक्षा करने में वो आगे रहे हैं। और अब्दुल रहीम खाना का एक बड़ा भारी मकबरा है, जिसकी उतनी ख्याति नहीं है जितनी होनी चाहिए, अब शायद होगी। उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे आगा खां ट्रस्ट वाले। तो मकबरे में तो बड़ा आयोजन होता है उसका जीर्णोद्धार करने में। उसके साथ साथ उनको विचार आया कि जो विद्वान है उस काल के, मुगल काल के, अकबर के काल के, उनको बुलाया जाए, एक गोष्ठी हो
एक पुस्तक आयोजित की जाए उन पर, जो मैंने अंग्रेजी वाली आपको दिखाई, वो 2017 में हुआ। फिर उसके बाद वो मकबरा और बनता रहा, तो मुझसे कहा गया उसमें भी लेख लिखने के लिए, अंग्रेजी वाली पुस्तक में भी, और अनुवाद छपने थे तो मुझसे अनुवाद करने को भी कहा गया, 2-3 और लोगों से भी कहा गया, मुझसे भी कहा गया। ऐसे मेरा इस रहीम के जीर्णोद्धार में प्रवेश हुआ। फिर ये बात हुई, उन्होंने पहले अमीर खुसरो पर भी इसी तरह से काम किया था, निजामुद्दीन बस्ती में जीर्णोद्धार का, उसमें केवल अंग्रेजी की पुस्तक थी, हिंदी की पुस्तक नहीं। तो उनको जब पता चला कि अंग्रेजी में जिन लोगों ने लेख लिखे उसमें से एक को हिंदी भी आती है और अच्छी खासी आती है, सबको तो नहीं आती अंग्रेजी वालों को, तो ये धीरे धीरे विचार बना कि रहीम इतने बड़े कवि हैं, अमीर खुसरो उतने बड़े कवि हिंदी में तो है ही नहीं, उनका हिंदवी काव्य बहुत ही संदिग्ध है प्रामाणिकता की दृष्टि से। उन्होंने फारसी में बहुत कविता की, बड़े बड़े दीवान भर दिए, बड़े बड़े उन्होंने कसीदे लिखे, तो वो हिंदी के कवि नहीं है मुख्यतः, रहीम हिंदी के कवि, फारसी में बहुत कम है उनका। तो हिंदी में एक पुस्तक बनाने की योजना बनी और उसका मुझे संपादक बनाया गया। और मैंने क्या किया, देखिए कबीर, रहीम, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा भी, इन पर सबका ध्यान गया है, जायसी पर भी ध्यान गया है। ये सब मेरा ख्याल है हिंदी में BA MA में पढ़ाए जाते हैं, रहीम को स्कूल के बाद ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए रहीम की उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं बनी, विश्वविद्यालय में नहीं बनी और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में नहीं बनी, जबकि मार्मिक वो इतने हैं कि इन सब कवियों की टक्कर के हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में बहुत ही सुंदर बात कही कि इनके दोहे लोगों की जुबान पर रहते हैं, उसी प्रकार जैसे तुलसी की कविता, और तुलसी के साथ इनका एक साम्य और दिखाया कि दोनों का अवधी और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था, जो अनेक कवियों का नहीं था। 2 ही 3 कवि हुए हैं हमारे साहित्य में, तो तुलसी के बराबर कुछ मानने में खड़ा किया। लेकिन तब भी शुक्ल जी ने क्या किया कि भक्ति काल के बड़े कवियों का तो विस्तार में उल्लेख किया, और एक उन्होंने अध्याय बनाया भक्ति काल के फुटकल कवि, उसमें रहीम को डाला। उसमें 22 कवि हैं, तो 22 में एक तो कोई बात ही नहीं हुई फिर, इसलिए भी रहीम शायद थोड़ा दबे रहे। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें बहुत सुंदर काम किया। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी अवधारणा अगर किसी ने बढ़ाई है शुक्ल जी के आगे, शुक्ल जी का पूरा सम्मान करते हुए, तो हजारी प्रसाद जी तो हैं ही, लेकिन रामस्वरूप जी का भी योगदान कम नहीं। तो उन्होंने कहा कि भक्ति काल के 6 प्रमुख कवि हैं, 4 तो वह हैं ही, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, उसके अलावा जायसी को गिना उन्होंने और रहीम को गिना, तो 4 से 6 किए उन्होंने। मुझे भी लगता है कि रहीम का सच्चा स्थान वही है, और अगर मैं इस पुस्तक के माध्यम से उसकी पहचान बनाने में, उनकी, रहीम की इतनी ऊंची पहचान बनाने में कुछ अगर कर सकूं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैंने फिर ये पुस्तक संपादित करने में जो भी बड़े बड़े मुझे विद्वान दिखे जिनका काम रहीम के आसपास था, रहीम पर तो काम बहुत कम है लोगों का, तो उनसे मैंने कहा कि आप इस विषय पर लिखें, रहीम के इस पक्ष पर। केवल ये नहीं कहा कि आप रहीम पर पुस्तक छप रही है, आप लेख भेज दें, ऐसा नहीं लिखा। और दूसरे, मैंने हर एक को एक पक्ष दिया जो उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप था, और दूसरे, जब लेख आ गया तो उनसे वार्तालाप हुआ मेरा, फोन पर भी, ईमेल पर भी, कि यहाँ कुछ इसको बढ़ा दीजिए, वहां कुछ घट सकता है। हिंदी में मैंने पाया है कि अधिकतर, मेरा भी अनुभव यही है, जब मैं लेख लिख के भेजता हूँ तो वहां से पत्र आता है कि आपने मुझे लेख लिखकर कृतार्थ किया, संपादक कहता है अब ये सीधा छपने जा रहा है। ये अंग्रेजी में नहीं होता, मैं तो अंग्रेजी का उसमें सविनय, बहुत ही शालीनता से ये होता है कि आपने लिख दिया, अब इसको आगे देखते हैं कि बहुत बढ़िया लिखा आपने, लेकिन इससे बेहतर कैसे हो सकता है। तो ये संवाद बना रहा, और जितने लोग यहाँ दिल्ली में थे, और व्याख्या जब लिखी जा रही थी ये आगा खां ट्रस्ट के ऑफिस में, कितनी तो हमारी मीटिंगें हुई जिनमें सब लोगों ने एक एक दोहे का, एक एक बरवई का उसकी व्याख्या पढ़ी, उसमें संशोधन किया। वह सामूहिक प्रयास किया हम लोगों ने, और संपादन का काम, उसका दायरा भी मैंने बढ़ाने की कोशिश की, और सब लोगों ने पूरा सहयोग किया। जितने लेखक हैं इसमें, लेखों के नाम्बर जी से लेके, वो बहुत ही उनसे उनका स्नेह था,
मैनेजर पांडे, बाकी सब जितने लोग हैं, सब मेरे बरसों के मित्र रहे हैं, तो उससे भी बड़ी सुविधा हुई, हर एक पक्ष उजागर हुआ रहीम का। तो इस प्रकार ये पुस्तक छपी। यतीन्द्र जी, आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत धन्यवाद रेखा जी मुझे याद करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे सबसे खूबसूरत बात जो सर ने खुद ही कही कि इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात ये लगी कि सिर्फ संपादन के लिए संपादन नहीं किया गया है। जब किताब मेरे हाथ में आई तो एक कंप्लीट पैकेज होता है, जैसे एक कंपेंडियम, एक रीडर बनाते हैं। तो रहीम को कुछ व्यापक स्तर पे देखने की बात, सिर्फ वही नहीं कि नीति के दोहे हैं या रहीम बहुत अच्छे कवि हैं, या जो एक हिंदी में थोड़ा सा बखान की जो संस्कृति है कि हम एक दोहा लेकर के और वो करके और काम कर देते हैं। बहुत सारी संपादित किताबें आप जब पढ़ के निकलते हैं, आपके ज्ञान में इजाफा नहीं होता, आपको लगता है जितना हम जानते थे वही सब चीजें उलट पुलट के हमें मिल गई हैं। लेकिन पहली बार मुझे ये किताब समग्रता में संतुलित लगी, एक बात। दूसरी बात कि रहीम के वैसे पक्ष, जैसे नगर शोभा जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, इन सब पे चर्चा आप अगर मैनेजर पांडे जी का लेख देखें, अनामिका जी का लेख देखें, और मैन्युस्क्रिप्ट के नाम पर बहुत सालों से शोध और अध्ययन कर रहे हैं उदय शंकर दुबे जी। उदय शंकर दुबे जी की जो उनका लेख है। फिर बाद में जब आप अंत में चलते हैं तो दीपा गुप्ता ने बहुत सारे सोठा, बरवे, सबका बहुत सुंदर ढंग से अनुवाद किया है, अपने ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है। और हर लेख इस बात का इशारा करता है कि संपादक की कैंची या संपादक की कलम जरूर लगी है, क्योंकि वो एक रिंग मास्टर की तरह उन्होंने एक ऐसे काम किया है कि आपको इस विषय पर फोकस रखना है। कोई भी लेख दूसरे लेख से मिलता जुलता नहीं है। एक सब्जेक्ट जब खत्म होता है तो दूसरा सब्जेक्ट दूसरे लेखक के साथ शुरू होता है, तो रिपीटिशन नहीं है। आप बहुत सारी किताबों में पढ़ें तो तमाम सारे, क्योंकि मैंने भी पिछले वर्ष जब बेगम अख्तर पे किताब संपादित की तो हर आदमी एक ही पक्ष बता रहा था, तो मुझे बहुत सम्मान से कहना पड़ा कि नहीं, आपको गजल पे बात करनी है, नहीं आपको ठुमरी पे बात करनी है, नहीं आपको उनके व्यक्तिगत जीवन पे, खान पान पे बात करनी है। तो ये एक संपादक का दायित्व बन जाता है कि वो किस तरीके से अपने विविध विषयों को समग्रता से वहां पर डालता चले। और जो दो लेख सर के हैं हरीश जी के, वो अपने में मुकम्मल है उसकी पाठ प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए कि हम दरअसल कौन सा एक रूप दिखाना चाहते हैं रहीम का। और सबसे बड़ी बात यह है जो सर ने खुद ही कहा कि हाई स्कूल के बाद पढ़ाए नहीं जाते और नीति के दोहा के बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये किताब शायद शोध करने वालों के लिए, नए तरीके से पढ़ने वालों के लिए और हम जैसे जिज्ञासु पाठकों के लिए एक नई दृष्टि दे सकता है, एक विचार खोल सकता है कि कोई भी नया लड़का लड़की जो पढ़ना चाहे, कहीं बैठा हो यहाँ या विदेश में, तो कम से कम वो नगर शोभा उठा करके देखेगा, वो बरवे नायिका भेद देखेगा, वो श्रृंगार कोठा में जाएगा, मदनाष्टक में जाएगा। ये बात इस किताब की बहुत बड़ी थाती है। और जिस तरीके से नारंग जी बात करते हैं, जिस तरीके से गुलजार साहब बात करते हैं कि वो ऐसे कवि हैं जिनके उस पर लिहाफ पड़ा हुआ है, तमाम परतों का लिहाफ पड़ा हुआ है, तो बात वो इतनी सुंदर कहते हैं, सूक्ति में कहते हैं, आप उसके इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विचार के तहत ये किताब बहुत खूबसूरत बनी है। और हिंदी में कम से कम अकादमिक जगत में जब किताबें बनती हैं तो कई बार, मतलब मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा इस मंच पे, बहुत बोर भी होती हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, आपको आनंद नहीं आता, आप आधे में छोड़ के निकल जाते हैं और उसकी महानता गा के चले आते हैं। रिव्यू करना मेरा मैं काम है, मैं हर हफ्ते रिव्यू करता हूँ, लेकिन इस किताब ने जैसे बांध लिया और जिसको आस्वाद के साथ पढ़ा जाता है, जिसके लिए एक हिंदी में एक शब्द चलता है अनुचिंतन, उसने ये अनुचिंतन का सब्जेक्ट है जो सर ने किया है। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और इस किताब के बाद जब रहीम पे बात हो तो कम से कम उन्हें एक समग्र बड़े कवि के रूप में देखा जाए। क्योंकि मुझे भी लगता है, और मैं हरीश जी से पूछना चाहूंगा यहीं पर आपसे इजाजत लेते हुए, कि जो इनका अवध और ब्रिज का मामला है, जो ब्रिजावधि का मामला है, वो पहले खुसरो से भी वो परंपरा शुरू हो जाती है, तमाम सारी चीजें हैं। और हर कवि, खास करके जब वो भक्ति काल का कवि है तो वो एक वाग्यकार है, बंदिश करने वाला, कि वो बंदिश नहीं भी कर रहा है, रागदारी नहीं डिफाइन कर रहा है तुलसीदास की तरह या मीरा की तरह, तो भी वो गाया जाता है। उसके पद, उसके, और कबीर तो इतना गाए गए हैं कि दोहों तक को गा दिया गया है, उनके शब्द और सब चीजें गाई गई हैं।
तो एक तरफ खुसरो आते हैं, एक तरफ तुलसी आते हैं, मीरा आती हैं, कबीर आते हैं, दादू, मलूक, पीपा सब हैं, सब गाए गए। इतने इम्पोर्टेंट एमिनेंट पोएट होने के बाद रहीम इससे क्यों अछूते रहे, वो परंपरा क्यों नहीं आई, ये मैं जानना चाहूंगा सर। यतीन्द्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप तो गायकी के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपने इस पुस्तक का जितने मुक्त कंठ से गुणगान किया है तो ये पुस्तक सार्थक होगी। मतलब इसमें रहीम की सार्थकता शीर्षक में आता है। सार्थकता तो पाठकों के पास पहुंचकर बनती है, पुस्तक को सार्थक तो पाठक बनाता है। और आपका जैसा सुधी पाठक इसको और कुछ और भी मिले, सामान्य पाठक भी मिले, और तो इसके भाग्य खुलेंगे इस पुस्तक के। जहां तक गाने की बात है रहीम को, देखिए अमीर खुसरो से शुरू होता है, जैसा आपने कहा। उनकी तो कव्वाली शैली में गाया जाता है अधिकतर, तो वो तो हिंदी की साहित्यिक परंपरा से थोड़ा अलग है। हिंदी का ही भाग है, लेकिन वो संगीत की परंपरा थोड़ी फर्क है कव्वाली की। वो सूफी परंपरा में आता है, और हमारे जो बड़े सूफी कवि हैं उन्होंने उस छंद में लिखा नहीं। जैसे जायसी है, कुतुबन है, मंजन है, उनको नहीं गाया जाता, और गाया जाएगा तो दोहा चौपाई की तरह ही गाया जाएगा, वही छंद है उनका। कबीर को गाने के द्वारा जितनी ख्याति मिली उतना पढ़े जाने से भी नहीं मिली, क्योंकि कबीर को पढ़ना बहुत कठिन है। कबीर के वही 8-10 दोहे जैसे रहीम के वही लोगों को आते हैं, और इंगला पिंगला सुखमन नारी जब आ जाती है उसमें तो लोग बेहोश होने लगते हैं। ये कहाँ चले गए कबीर, ये कहाँ किस तंत्र की कंदरा में हमको लिए जा रहे हैं, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। उलट बांसी की तो बात ही अलग है। झीनी झीनी बीनी चदरिया से जो मैंने अभी पंक्ति कही इंगला पिंगला वाली, तो झीनी झीनी तो सबको बहुत अच्छा लगता है गाने में। उसके बाद शब्दों का अर्थ खो जाता है जो लोग सुन रहे हैं गाने, वो गाने। रहीम में क्या हुआ कि रहीम के दोहे इतने अधिक हैं और बरवे इतने अधिक हैं मुख्य। उन्होंने भी पद लिखे हैं, जैसे सूरदास ने लिखे हैं उसी तरह के पद भी लिखे हैं उन्होंने। कमल दल नैनन की उन्मान, बहुत ही सुंदर पद है इस पुस्तक में। तो पद अगर अधिक होते तो गाने की संभावना अधिक बनती। आपने सही कहा कि कबीर के दोहे भी गाए जाते हैं, लेकिन दोहों में वो बात नहीं बनती, 2 लाइन में तो खत्म हो जाता है। और दूसरे जब तक 8-10 लाइन न हो गाने के लिए, और वो दोहे की लाइन जिसे उर्दू में बहर कहते हैं, पंक्ति की जो परिमाण है वो भी छोटा होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में एक बहुत सुंदर बात बार बार कही है। जिन लोगों ने अधिक दोहे लिखे हैं उनके बारे में कहा है कि इनका नाद सौंदर्य नहीं है। इस कवि में केवल दोहे लिख के उतना नाद सौंदर्य पैदा करना बड़ा कठिन काम है। उसके लिए थोड़ा बड़ा छंद चाहिए, थोड़ा बड़ा पद चाहिए। तो एक तो ये बात है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, इसकी शुरुआत हो गई है। वो जो मैंने आपको बताया कि 2017 में जब अंग्रेजी वाली पुस्तक छपी रहीम पर, तो उसमें देश विदेश के बहुत से विद्वान यहाँ आए थे, आमंत्रित किए गए थे। और 3 दिन ये हैबिटेट के ऑडिटोरियम में शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और उसमें 2 दिन केवल गाने का था। और बड़े गाने वाले गुंडेशा बंधु, इन्होंने और भी गाए। तो वो जो गाने का माहौल बना दोहे गाने का भी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, उससे शुरुआत हो सकती है। मेरा ख्याल है आगा खां की वेबसाइट पर तो अवश्य मिलेगी, और अंग्रेजी पुस्तक के साथ भी बिकती है। वो अंग्रेजी पुस्तक के स्लीव में रहता है उसका एक CD। तो रहीम क्यों ना गाए जाए। देखिए हमारा जमाना जो है पढ़ने का कम हो रहा है, सुनने का देखने का ज्यादा हो रहा है, तो दृश्य श्रव्य अधिक प्रमुख हो रहा है। तो रहीम अगर गाए जाएं तो रहीम की एक नई तरह की लोकप्रियता अवश्य सामने आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा जी। नहीं, ये मेरे लिए भी बड़ी रुचिकर बात है जो आप उसकी स्लीव मतलब सीड की बात कर रहे हैं। और ये भी है कि एक दोहा कबीर का जो गाया जाता है, आबिदा प्रवीण ने भी गाया, और इस पुस्तक में मुझे रहीम के नाम से मिलता है। बस इतना अंतर है कि चाह गई चिंता मिटी, मनोरथ बेपरवाह, कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। यहाँ बस पंक्ति बदल जाती है, वो शहन के शाह।
तो मेरे लिए बड़ी एक ये विलक्षण बात थी कि हम अक्सर भाव के स्तर पर कहते हैं कि भाई भक्ति के दो कवि लगभग एक जैसे हैं या कुछ ना कुछ उन पे प्रभाव है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बिंब प्रतिबिंब, और भी कई छंद मुझे ऐसे नजर आए जिनमें कबीर की कुछ कुछ बातें थी। और दोहा की जब हम बात कर रहे हैं तो नामवर जी तो अपने लेख में दोहे को एक संस्कृति कह रहे हैं इसी पुस्तक में। तो बहुत सारी चीजें, ये जो यतीन्द्र जी ने बात कही कि ये जो पुस्तक है अपने आप में, जब आप इसको छुए भर ही तो आपको बांध लेती है। तो मतलब उसके अपने इस पुस्तक के बीच बीच में बड़े मुगल मिनिएचर पेंटिंग है, उसका प्रस्तुति बहुत सुंदर है, और जो कवर ही है उसमें गोल्डन लाइन जो है, और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी किताबें जो हैं वो जब आकर्षित करती हैं। ये देखिए, इसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। बीच बीच में भी चित्र है, और चित्रों की व्याख्या भी है कि वो चित्र कहाँ से लिया गया। और वो जो आपने उसकी बात कही, जो मकबरा रेनोवेट हो रहा था, उसकी पुनर्व्यवस्था हो रही है, उस सब के भी पूरा इतिहास इस किताब में है। इस किताब की खास बात मुझे जो लगी कि एक तरफ तो गोपीचंद नारंग और गुलजार साहब बात कर रहे हैं, एक तरफ उसमें गंभीर आलोचनात्मक निष्कर्ष हो रहा है, एक तरफ वो पूरा जो रहीम ने लिखा वो व्याख्या सहित यहाँ आ रहा है। और एक खुशखबरी ये भी है कि अब यूनिवर्सिटी में रहीम पढ़ाए भी जा रहे हैं, तो कम से कम के लिए। लेकिन हरीश जी, मुझे खास बात ये लगी कि इसमें आलोचना का भी एक नए तरह का हस्तक्षेप है, खासतौर पे जो आपका अपना लेख है जो रहीम की मतलब दृष्टि पर है, जीवन दृष्टि पर है, परिचयात्मक नहीं। उसमें आपने बड़ा गजब का काम किया है। आपने एक तरह से एक स्टेटमेंट उठाया है कि क्या रहीम भक्ति के कवि हैं? आप कहते हैं हाँ है, लेकिन ये नहीं है। वो रीति के हैं, हाँ है, लेकिन ये नहीं है। तो ये जो चलती है आलोचना, जो बांधती भी है, तर्क भी करती है, और जिसे यतीन्द्र जी ने बहुत खूबसूरत शब्द दिया कि अनुचिंतन के लिए आपको विवश करती है, कि आप उस पर बार बार सोचें। तो उस पर आप क्या, आपके मन में क्या था और आपने क्या सोचा था? मेरे मन में थोड़ी आशंका थी, थोड़ा डर था कि अगर मैं ज्यादा नई बात कह दूंगा तो पिटूंगा। तो ये था। और दूसरे क्या था कि रहीम को मैंने देखिए 2-3 साल जब तक पुस्तक बनती रही, और अंग्रेजी की पुस्तक से अगर आप शुरू करें, वो तो सन 1516 में मैंने लेख लिखा था उसके लिए, तो 5 साल पिछले जो हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और काम नहीं किया, लेकिन रहीम मेरे साथ लगातार रहे। तो रहीम पर चिंतन मनन करने का मुझे पर्याप्त समय मिला। तो मुझसे कई चीजें जो खुल के आई मेरे मन में, मुझे लगा मैं केवल परिचयात्मक लेख लिख देता, जो प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन में जाता है शुरू में, वो मैंने लिखा भी है, परिचय एवं परिचर्चा। तो उससे तो पूरी व्यापक दृष्टि रहीम के काव्य पर, उनके व्यक्तित्व पर तो डालनी ही होती है संपादक को किसी पुस्तक के। तो वो तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मेरे मन में भी जो आ रहा था, वो मुझे अलग से लेख लिखने का कोई मतलब नहीं था, मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं था ऐसा। लेकिन मुझे लगा कि जो घुमड़ रहा है मेरे मन में, ये कहना चाहिए, क्योंकि ये रामस्वरूप जी ने ही पहली बार शायद बल देकर कहा है कि रहीम भक्ति और रीति के मिलन बिंदु पर आती है। रीति शुरू हो रही है, भक्ति का स्वर्ण युग समाप्त हो रहा है उनके जीवन काल में। केशवदास तो उनके समकालीन है, 1 ही साल का फर्क है उनमें, और बिहारी जो है ज्यादा छोटे हैं, करीब 40 साल छोटे हैं, लेकिन समकालीन तो कहे जा सकते हैं। तो रीतिकाल शुरू हो रहा है, और रहीम ने इसीलिए उनके बारे में ठीक ही कहा गया, नगर शोभा जैसा श्रृंगार रस का, बरवै नायिका भेद तो बहुतों ने लिखे हैं, रहीम के पहले शायद लोगों ने नहीं लिखे।
उसमें भी रहीम शुरू में ही है, उसमें भी वो भक्ति और रीति के संधिकाल पर है। और नगर शोभा जैसा ग्रंथ तो हिंदी में, मैंने नाम्बर जी से पूछा कि आप बताइए, आप तो बताएंगे, बोले नहीं, इसका कुछ संकेत मिलता है संस्कृत के ग्रंथों में आचार्यों के। बाद में देव ने शायद लिखा है जाति विलास, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन नगर शोभा में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नायिका नायिका भेद वाली है, वो खंडिता नायिका है, मुग्धा नायिका है, प्रगल्भा नायिका है, पुरुषोत्पत्तिका नायिका है, ये सब तो संस्कृत से आ रहा है। रहीम ने क्या किया, रहीम दरबारी जरूर थे, लेकिन रहीम ने इतनी जगह लड़ाइयां लड़ी, और लड़ाइयां किसके बल पे जीती जाती हैं? सेनापति के बल पर नहीं, आम सिपाही के बल पर जीती जाती है, जो आगे चलता है और जान देता है। तो रहीम का इस तरह के आम व्यक्ति के साथ बहुत गहरा संबंध बना, और इसीलिए वो इतने सफल सेनापति भी हुए। तो उनको जनजीवन का ज्ञान, साक्षात ज्ञान, उन्हीं सिपाहियों से और उनके परिवारों से मिला, ये मुझे लगता है। लोग कहते हैं ना, किंवदंती है कि ऐसा ही एक सिपाही देर से लौट कर आया तो बरवे छंद की उत्पत्ति हुई, प्रेम पंथ को बिरवा चले लगाए, बाकी भी सुध लीजो ना मुरझाए, ये पहला बरवे कहा जाता है। किंवदंती है, कोई बात नहीं, लेकिन सिपाही का प्रसंग है। तो मुझे क्या लगा कि ये जो जनजीवन है, इसको भी रहीम ने जिस प्रकार से जोड़ा, वो दृष्टि जो उनकी बनी, वो उसी से बनी उनकी, कि उनका शास्त्रीय भी है, संस्कृत का ज्ञान है, फारसी का ज्ञान है, दो तरह से शास्त्रीय है। उनका दरबारी ज्ञान है और उनका जनजीवन भी है। तो ये सब मिलकर जो उन्होंने बनाया है। और एक बात जो आपने अभी कही, उसके भी मैं उल्लेख करूं कि व्याख्या हमने क्यों दी यहाँ। वो दीपा गुप्ता जो हैं, जो मैंने अभी कहा ना कि रहीम पढ़ाए नहीं जाते ऊंची क्लासों में और शोध नहीं होता उन पर, इस पूरी पुस्तक में अगर रहीम पर किसी की पीएचडी है तो केवल दीपा गुप्ता की है। और वो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप अधिकतर व्याख्या आप ही लिखें। और व्याख्या की जरूरत क्या है? देखिए, व्याख्या की जरूरत हमें गीता प्रेस ने सिद्ध कर दी है। तुलसी और रहीम समकालीन थे। तुलसी की रामायण तो बिना टीका के छपती ही नहीं है, ये गीता प्रेस ने शुरू किया। वो समझ गए कि बिना खड़ी बोली में इसका अर्थ बताए समझेंगे नहीं लोग। आपको तो पता है रेखा जी, आप हिंदी विभाग में पढ़ाती हैं, मैंने बहुतों से बात की है। हिंदी विभाग में आधुनिक विमर्श पढ़ाने वाले, स्त्री विमर्श पढ़ाने वाले, दलित विमर्श पढ़ाने वाले या फिर कबीर पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। रीतिकाल के नाम पर भगदड़ मच जाती है, कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। तो इसमें ये भी तो है ना कि ब्रज भाषा और अवधि पर अधिकार हो, और मानना चाहिए कि 400 साल हो गए, अब तो व्याख्या चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो ये भी इसका एक पक्ष था। हमारे पास लगभग 8 मिनट का समय और है जी। तो बहुत जल्दी जल्दी काफी सारी बातें हमने की हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर हम हैं, तो ये जो नगर शोभा जो ग्रंथ का उल्लेख हो रहा है, उसमें नायिका भेद, तो यतीन्द्र जी आप इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? खासतौर पे इस किताब में 2 लेख हैं जो रहीम का जो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण है उस पर बात कर रहे हैं इन किताबों के माध्यम से, और आपने भी अपनी समीक्षा में इसका उल्लेख किया है। तो आप क्या जल्दी से इस पर एक छोटी सी टिप्पणी देंगे? मुझे लगता है कि इस किताब में बहुत खूबसूरत ढंग से अनामिका जी ने नगर शोभा की बात की है, और सारे भेद और उनके पाठ का अपना एक स्थान और एक स्थापत्य सिद्ध किया है। मैं कुछ एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे रहीम को लेकर के और इस किताब को पढ़ने के बाद, वो मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। जैसे मुझे लगता है कि रहीम के साथ अन्याय हुआ है और अंडररेटेड पोएट रहे इस अर्थ में कि वो इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं, वो मदनाष्टक लिखते हैं, वो इतने सारे सोरठा लिखते हैं, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसैं कैदो शालिग्राम रूपे के अर्घा धरे। बहुत सुंदर। मतलब श्याम के नेत्रों की चर्चा कर रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिलता जो मीराबाई को मिलता है, या जो रस खान को मिलता है, या जो अन्य कृष्ण भक्त, जहाँ ताज तक को मिलता है। ताज बीबी ने 4 पद लिखे हैं, उनको भी एक बड़ी कृष्ण भक्त कवियत्री के रूप में देखा जाता है, लेकिन रहीम मदनाष्टक लेके आते हैं। मैं मदनाष्टक का एक पद आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत छोटा सा है कि शुरुआत ही होती है उसकी। मैं 1 मिनट।
तो वह मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या खूबसूरत भाषा अंगीकार कर रहे थे रहीम। शरद निश निशीथे चांद की रोशनाई, सगन वन निकुंजे कान्ह वंशी बजाई, रतिपति सुत निद्रा साइया छोड़ भागी, मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी। आप देखिए क्या खूबसूरत बात है, और संस्कृत के साथ जोड़ते हैं, जैसे कभी खुसरो फारसी के साथ ब्रिज को जोड़ते हैं, तो एक बड़ी परंपरा है, और बहुत कई परतों वाला जीवन जिया है। सेनापति हैं, एक उनके जीवन का दुख ये है कि उनके सामने उनका दामाद मारा जाता है, उनके दोनों बच्चे मारे जाते हैं, पिता तक की हज के नाम पे हत्या होती है, उनसे खाना का वो पद छीना जाता है। शाहजहां के दरबार में भी वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं पाते। बहुत अंत में जाकर जब 72 वर्ष की उम्र होती है, उसी समय उनकी मृत्यु होती है। तो रहीम ने जो कई परतों वाला और जो सियासी जीवन भी जिया है, जो राजनीतिक सामाजिक आशय हैं, जो सबाल्टर्न स्टडी है उनके जीवन की, वो भी कहीं उनकी कविता में परिलक्षित होती है। वो कहाँ से लेकर के आते हैं, वो ऊर्जा कहाँ से लेकर आते हैं, और जब नायिका भेद करते हैं तो आप सोचिए कि मतलब एक जैसे एक विधान रचा जाता है, रस सिद्धांत की किताब होती है, ऐसे वो बता रहे हैं कि अगर प्रोचित पत्रिका है तो ऐसी है, खंडिता है तो ऐसी है, प्रगल्भा है तो ऐसी है। तो इसका मतलब है कि बहुत मेरिट वाले कवि रहे होंगे, क्योंकि मुगल दरबार आज की डेट में साहित्य अकादमी किसी को अपना फेलो बनाए तो वो बहुत मेरिट वाला आदमी होगा। तो उस जमाने में अकबर के दरबार में रह के तानसेन के पैरेलल और तमाम सारे शायर, और एक दुराभिसंधि भी चलती होगी कि कब किसको नीचा दिखा दिया जाए, कब किसको ऊंचा दिखा दिया जाए। उस सब के दबाव को झेलते हुए, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा दुख पाते हुए रहीम सबसे एक्सेल करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अपने को तोड़ते हैं। और मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर कि मदनाष्टक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो उनकी कीर्ति को बहुत बहुत जिंदा रखने वाला है। और अगर कृष्ण प्रिय कवि के रूप में हम देखें तो वो कहीं से भी 19 नहीं ठहरते मीरा के आगे या रस खान के आगे। ऐसा क्यों हुआ? और तब जब रामचंद्र शुक्ल ये इशारा करते हैं कि वो जनता का प्यारा कवि है, जनता का दुलारा कवि है, उनकी वाक्य संरचना में हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है कि जो जनता का प्यारा कवि है वो बहुत समादृत होता है। और खुद वो किस दबाव में ये काम करते हैं कि उनको फुटकल कवियों के उसमें रख देते हैं। तो मुझे लगता है उसकी परंपरा अलग थी। बहुत सही कहा आपने। उनके ऊपर जैसे उनके बारे में ये भी कहा जाता है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं शुक्ल जी के बारे में। जी आजकल इसके समर्थक थे, उसके समर्थक थे। अरे भाई, जायसी पर जिसने पुस्तक लिखी उस पर आप आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? ठीक बात। वो परंपरा उनको मिली थी, तो रहीम को एकदम से ऊपर नहीं ला सकते थे। आपने बहुत ही बढ़िया बातें कही, इतने बढ़िया बिंदु आप निकाल के लाए हैं। लेकिन अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ रेखा जी, आपने जो पूछा, मुझे क्या लगता है उनकी जीवन दृष्टि में भक्ति भी है, थोड़ी सी रीति भी है, नीति भी है, लेकिन व्यंग्य विनोद और विडंबना का भाव, जिसमें आप किसी भी अनुभव से बड़े गहरी रूप से जुड़े हुए हैं। पूरा जीवन का सभी रस आपने भोगा है, सभी तरह का, और खुद दुख भी भोगा है, जैसा यतीन्द्र जी कह रहे थे। लेकिन आप कभी उससे निराश हतोत्साहित नहीं हुए, मार्मिकता ही आपकी बढ़ी। चाहे जितना आपके ऊपर विपदा आ जाए, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन। यहाँ उन्होंने जो बहुत ही ऐसी करुण बात कही है कि रहीमन निज मन की व्यथा निज ही राखो गोय। सब कि बांटने से दुख कम होता है। वो कहते हैं नहीं, सुनी अजलई है लोग सब, बांट न ले। तो ये जो उनका भाव है, ये हिंदी में अनूठा है, विलक्षण है, और ये केवल व्यंग्य विनोद नहीं है, ये जीवन दृष्टि है। यही मैंने कहा है। और इसीलिए वो लोग कहते हैं आजकल उनकी प्रासंगिकता क्या है कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव मिटा सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में ये नहीं है। वो मुसलमान थे, मुसलमान रहे, उनको हम भक्त कवि कह के हिंदू को बना रहे हैं। वो मुसलमान थे और भक्त नहीं थे, लेकिन भक्ति कविता लिख रहे थे, इनमें भेद है। और जैसे वो नीति कविता कबीर वाली नहीं लिख रहे थे। कबीर ने कहा है सच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। रहीम ने ये नहीं कहा। रहीम ने कहा अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिलन राम।
वो नहीं कह रहे हैं कि आप किधर जाइए, वो केवल ये कह रहे हैं कि इसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम ये होगा। कबीर और रहीम में ये फर्क है। सर एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा। विद्यानिवास जी ने जब रहीम ग्रंथावली संपादित की तो उसकी प्रस्तावना में एक बहुत सुंदर बात कही कि वो जो उनका है बहुत मशहूर दोहा है, मुझे बहुत पसंद है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हाथ। तो उन्होंने कहा कि जो टूट गया है और जो मानवीय मूल्यों से जो छिटक गया है उसको बार बार जोड़ने वाले नैतिक कवि हैं सही। तो जो मानवीय संवेदना है और जो उसको जोड़ने की बात है, तो ये बात बहुत सुंदर लगती है और ये सबसे बड़ी प्रासंगिकता है आज के समय। लेकिन इसको हम लोग छोटा न करें ये कह के कि वो केवल हिंदू मुसलमान को जोड़ रहे हैं, वो हिंदू को हिंदू से भी जोड़ रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से भी जोड़ रहे हैं, मानव मात्र को जोड़ रहे हैं। मानवीय करुणा के बड़े कवि हैं भाई। बस भाई रेखा जी आप बताएं। हाँ अंत में हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं, जैसे जो आपने अंग्रेजी की किताब दिखाई थी सेलिब्रेटिंग रहीम, तो कुछ ऐसा है कि रहीम हो या अन्य भक्त कवि हो या रीति कवि हो, वो सब हमारी उस साहित्यिक परंपरा का हिस्सा हैं जिनसे हम जुड़ करके और बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। तो शायद यही सबसे खूबसूरत बिंदु है इस किताब का भी, आज की परिचर्चा का भी। तो इसमें शामिल होने के लिए और ये सब बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर हरीश जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसा मोती चुन के लाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसी पुस्तकें आएंगी और उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप जैसे सुधी पाठक इस पुस्तक को और मिलने, इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा। सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी पुस्तक पढ़ के मैं कुछ सीख पाया, और इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के इस डिजिटल मंच पर आप दोनों का और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Harish Trivedi, Yatindra Mishra and Rekha Sethi for that fabulous conversation. We thank our celebration partner Diageo. The Jaipur Literature Festival 2021 is protected by Dettol. Thank you all for watching and being such a great audience. Please do stay logged on, and we'll see you back here for the next session.